Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the next chapter of Footprints Without Feet, that is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Robert W. Peterson was born in 1925. He was an American newspaper writer. Later, he became a freelance author of magazine articles and books. He wrote books especially on the topics of sports and scouting. Robert W. Peterson was raised in Warren, Pennsylvania. He played baseball while attending Uppsala College. He was writer and editor with the old New York World Telegram newspaper. His famous books are The Boy Scout, An American Adventure, was written in 1984. He died of cancer on February 11, 1966 in Salisbury, Pennsylvania. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का जन्म 1925 को हुआ। वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर के राइटर थे। बाद में वो एक स्वतंत्र रूप से मैगज़ीन आर्टिकल्स और बुक्स उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने ख़ास तौर से स्पोर्ट्स और स्काउटिंग के टॉपिक्स पर वो लिखा। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन की परवरिश वो वॉरेन पेंसिल्वेनिया में हुई। वो बेसबॉल खेलते थे और उपसाला कॉलेज अटेंड करते थे। वो द ओल्ड न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम न्यूज़पेपर के लिए एडिटर और राइटर का काम करते थे। उनकी फेमस बुक्स द बॉय स्काउट एन अमेरिकन एडवेंचर वो 1984 में लिखी गई। उनकी मृत्यु कैंसर से फरवरी 11, 1966 को सलिसबरी पेंसिल्वेनिया में हुई। Now I'll tell you about the theme of the story. This story is about a curious child, Richard H. Ebright. It is about his curiosity to become a scientist. He was very curious since his childhood. After his father's death, he was the only companion of his mother. His mother took him on trips and bought microscope, telescope for him. He started his journey to be a scientist by collecting butterflies. He had collected all 25 species of butterflies found around his town. Then he came across a book, The Travels of Monarch X, and came to know how monarch butterflies migrate to Central America. Then he started to take the monarch butterflies for Dr. Urquhart. Then he worked on utility of gold spots on pupa of monarch butterflies. Then his paper on working of cells was published in a scientific journal. He participated in many science exhibitions and got success. He was not interested in winning for prizes, rather, he wanted to prove himself and do the best as he could. He has never lost his scientific curiosity. यह कहानी एक क्यूरियस चाइल्ड यानी कि जिज्ञासु बच्चे रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में है। यह उसके साइंटिस्ट बनने की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के बारे में है। वह अपने बचपन से ही बहुत उत्सुक था। उसके फादर की डेथ के बाद वह अपनी माँ का सिर्फ एकमात्र साथी रह गया था, कंपेनियन रह गया था। उसकी माँ उसे घूमने लेकर जाती और उसके लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वो भी उसके लिए ख़रीद कर लाती। उसने अपनी साइंटिस्ट बनने की यात्रा थी या ट्रैवल था वो तितलियों को इकट्ठा करने से शुरू की। उसने अपने कस्बे के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की लगभग 25 प्रजातियां थी, स्पीशीज़ थी, उनको इकट्ठा किया। तब उसका एक बुक थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स से सामना हुआ और उसे पता चला कि किस तरह मोनार्क बटरफ्लाइज वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट हो गई, स्थानांतरित होती हैं। तब उसने डॉक्टर आर्क्वार्ट के लिए मोनार्क तितलियों पर लेबल लगाना शुरू किया। फिर उसने मोनार्क तितलियों के प्यूपा पर सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं उनकी उपयोगिता पर काम करना शुरू किया। फिर उसका सेल्स पर यानी कोशिकाओं पर काम करने का पेपर था वो वैज्ञानिक जर्नल था, पत्रिका, उसमें पब्लिश हुआ। उसने कई वैज्ञानिक समारोहों में हिस्सा लिया और सफलता प्राप्त की। उसे इनाम जीतने में रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह जितना कर सकता था उतना बेहतर, उतना अच्छा वो अपने आप को साबित करना चाहता था। उसने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, उसको कभी भी समाप्त होने नहीं दिया।
Now I'll explain you the chapter in detail. Richard and his college roommate explained the theory on how cells work in an article published in the Proceeding of the National Academy of Science. At that time, Richard was only 22 years old. It was the first time that the work of college students was published in scientific journal. It was a big achievement for Richard. रिचार्ड और उसके जो कॉलेज रूममेट थे उन्होंने सेल्स यानी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं उसके सिद्धांत की व्याख्या की थी, उसको एक्सप्लेन किया था, जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुई। और उस वक्त जो है रिचार्ड सिर्फ 22 इयर्स का था। ये पहली बार था कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट का काम जो है वो वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। ये रिचार्ड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी। Richard was the only child of his parents. He grew up in north of Reading, Pennsylvania. He had nothing to do there. He could not play football or baseball with a team of one. But there was one thing he could do. He could collect things. He started to collect butterflies in his kindergarten. He also collected rocks, fossils, and coins. He observed stars at night also. रिचार्ड अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में बड़ा हुआ। वहाँ पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह एक व्यक्ति की टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज़ थी जो वह कर सकता था। वह चीज़ों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना कर सकता था। उसने किंडरगार्टन में ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने चट्टानें, जीवाश्म यानी फॉसिल्स और जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, उनको वो भी इकट्ठे किए और रात को जो है वो तारों को बहुत ध्यान से देखता था। Richard was very intelligent fellow. His mother encouraged him in learning. She took him on trips and bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments that helped him in many other ways. After the death of his father, he was the only companion of his mother. He was everything for his mother. His mother called him Richie. He was in third standard when his father died. His mother brought friends for him and she found work for him when he didn't have anything to do. She encouraged him for learning. He wanted to learn. रिचार्ड बहुत होशियार था। उसकी माँ जो है उसे सीखने के लिए प्रेरित करती थी। वह उसे घूमने के लिए लेकर जाती थी। उसके लिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यानी कि टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास और माउंटिंग मटेरियल्स और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण जो है वो ख़रीदती थी, जो कि उसके लिए अन्य तरीक़ों से काफ़ी सहायक होते थे। उसके फादर की डेथ के बाद वो अपनी माँ का केवल एकमात्र साथी था। वह अपनी माँ के लिए सब कुछ था। उसकी माँ उसे रिची कहकर पुकारती थी। वह जब थर्ड क्लास में था तभी उसके फादर की डेथ हो गई। उसकी माँ उसके लिए दोस्त लेकर आती थी और जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो उसके लिए वो काम खोजती थी कि वो किसी न किसी काम में एंगेज रहे, और उसने उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और वह सीखना चाहता था। Richard earned top grades in school. He had collected all 25 species of butterflies all around his town when he was in second standard. रिचर्ड स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड लेता था और जब वो सेकेंड क्लास में था उसने अपने कस्बे के आसपास की जो बटरफ्लाइज थी उनके 25 स्पीशीज़ को कलेक्ट किया। It would be the end of collecting butterflies, but it was not so. His mother gave him a children's book, The Travels of Monarch X, which told how monarch butterflies migrate to Central America. This book changed Richard's life and opened the world of science for him. At the end of the book, the readers were invited to help study butterfly migration. They had to take butterflies for the research by Dr. Arquart. Richard came in the contact of Dr. Arquart through this book. He was influenced by him. यह उसके बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का अंत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसकी माँ जो थी उसके लिए एक जो है चिल्ड्रन बुक लेके आई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं। यह बुक जो थी उसने रिचर्ड के जीवन को बदल कर रख दिया और उसके लिए जो साइंस का संसार था वो खोल कर रख दिया। बुक के एंड में जो रीडर्स थे उनको बटरफ्लाइज का अध्ययन करने में सहायता के लिए जो है इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। उन्हें डॉक्टर आर्कवार्ड के द्वारा जो रिसर्च के लिए उन बटरफ्लाइज पर लेबल लगाना था। इस बुक के थ्रू जो है रिचर्ड डॉक्टर एडवर्ड के संपर्क में आया, उनके कांटेक्ट में आया और उनसे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ। Richard decided to help study butterfly and its migration pattern. He caught a female monarch and took its eggs. He observed all the stages of development of butterfly. He began to take their wings and let them fly. His basement became the home of thousands of monarchs in the different stages of development. रिचर्ड ने बटरफ्लाइज की स्टडी में और उनके माइग्रेशन में हेल्प करने का निर्णय लिया। उसने एक जो है फीमेल मोनार्क को पकड़ा और उसके अंडे लिए। उसने तितलियों के जो है डेवलपमेंट के सभी जो स्टेजेस थे उनको ध्यान से देखा। उसने इनके जो पंखों पर लेबल लगाने शुरू किए और उन्हें उड़ने दिया। इस तरह से उसका जो तहखाना था हज़ारों मोनार्कों का घर बन गया जो है डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में थी। Richard entered in county science fair when he was in 7th standard. He felt very sad when he got nothing there. While others had won something, he displayed slides of frog. He realized that the winners had tried to do real experiments. Then he took suggestions from Dr. Arquard. He got a stock of suggestions for experiments. He followed his suggestions and won many prizes at county and international science fairs. रिचर्ड जब 7th स्टैंडर्ड में था तब उसने काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया और वो काफ़ी बुरा महसूस कर रहा था जब उसे कुछ भी प्राइज़ नहीं मिला, जबकि बाकी लोग प्राइज़ जीत रहे थे। उसने फ्रॉग की स्लाइड्स को डिस्प्ले किया था, उनका प्रदर्शन किया था। उसने महसूस किया कि जो विजेता थे, जो विनर्स थे, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की थी। फिर उसने डॉक्टर आर्कवार्ड से सजेशंस लिए और डॉक्टर आर्कवार्ड ने उसे काफ़ी सारे जो है सजेशंस दिए। उसने डॉक्टर आर्कवार्ड के सजेशंस को फॉलो किया और काफ़ी सारे प्राइजेस जो हैं वो विन किए काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में। Then Richard worked to find the cause of viral disease that killed almost all the monarch caterpillars. He thought that the disease might be carried by a beetles. But he didn't get any result and went ahead. He showed that he had tried the experiment and this time he won. तब रिचर्ड ने उस वायरल डिज़ीज़ पर काम करना शुरू किया जिसकी वजह से जो अधिकतर मोनार्क कैटरपिलर्स होते थे वो मर जाते थे। उसने सोचा कि यह डिज़ीज़ जो है वो एक गुबरेला कीट यानी कि बिटल होती है उससे होता था, लेकिन इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला और वो आगे बढ़ा। उसने दिखाया कि उसने एक्सपेरिमेंट किया और इस बार उसकी जीत हुई। The next year, his science fair project was testing the theory why viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy butterflies looked like monarch butterflies. Birds do not like to eat monarch. So, it was beneficial for viceroy to be looked like them so that they may not become birds' prey. Albright wanted to prove whether birds eat monarch or not. He observed through others' research that viceroy butterflies might copy monarch butterflies. This project was placed first in zoology division and third in county science fair. नेक्स्ट ईयर जो उसका साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो था कि उस थ्योरी की टेस्टिंग करना कि क्यों जो वाइस रॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करते हैं, उनके जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, नकल करते हैं।
थ्योरी यह थी कि जो वायसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखती थी, और जो पक्षी मोनार्क होते हैं, बर्ड मोनार्क को खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए यह उनके लिए बेनिफिशियल था, लाभदायक था कि वह उनकी तरह दिखें ताकि बर्ड्स का शिकार ना बन सकें। एब्राइट यह प्रूव करना चाहता था कि क्या जो बर्ड्स मोनार्क को खाते हैं या नहीं। उसने दूसरे जो रिसर्चर्स थे उनकी रिसर्चेस को ध्यान से देखा और जाना कि शायद जो वायसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती थी। और ये जो प्रोजेक्ट था इसको जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज़ और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड प्राइज़ मिला। Then Richard tried to find the answer of the question, what is the purpose of 12 tiny gold spots on monarch pupa? Ebright and one other student had built a device that showed the spots produce a hormone that is necessary for butterflies' full development. He won first prize for this project in county fair and got entry for international science and engineering fair. There he won third prize in zoology and got a chance to work at entomology lab of Walter Reed Army Institute of Research. During the summer, he continued his advanced experiments on monarch pupa. He won first prize at the International Science Fair and got chance to work in Army lab also. Further, he worked at the Army lab and the lab of US Department of Agriculture. Then after his freshman year, at Harvard University, he went back to the Department of Agriculture lab and worked more on the gold spots hormone. Through the lab's sophisticated instrument, he could identify the hormone's chemical structure. Then he got new idea for his theory about cell life when he was looking at X-ray of chemical structure of hormone. तब रिचार्ड ने कोशिश की इस सवाल का जवाब ढूंढने की कि जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, उसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। एब्राइट और एक और स्टूडेंट ने मिलकर एक डिवाइस प्रिपेयर की जिसने जो स्पॉट्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें जो उन्होंने डिवाइस बनाई थी उसने शो किया कि जो ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स थे वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एब्राइट ने इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट प्राइज़ जीता काउंटी फेयर में और उसे इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल गई। वहाँ पर उसने जूलॉजी में थर्ड प्राइज़ जीता और उसे मौका मिला एंटोमोलॉजी लैब जो था वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में ड्यूरिंग समर काम करने का। और उसने जो है अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स जो थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर वो कंटिन्यू रखे, जारी रखे, और उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में और उसे मौका मिला कि वो आर्मी लैब में भी काम करे। आगे चलकर उसने आर्मी लैब और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का लैब था उसके लिए उसमें काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के बाद वो वापस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब में वापस आ गया और उसने गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन पर और ज़्यादा काम किया। लैब के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे उसके ज़रिए वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जान सका, पहचान पाया। फिर उसको एक नया आइडिया आया उसकी थियरी के लिए कि जो अबाउट सेल लाइफ, जब उसने जो है एक्सरे देखा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का। Along with his finding about insect hormones, he got a new idea about how cell can read the blueprints of its DNA. He and his friend James R. Wong worked all the night to show how it could happen. They both explained the theory later. इंसेक्ट हार्मोन के बारे में उसे कुछ नए विचार आए, कुछ नए आइडियाज़ आए कि सेल्स कैसे अपने डीएनए के नमूनों को पढ़ सकती है। उसने और उसके फ्रेंड जेम्स आर वोंग ने सारी रात ये दिखाने के लिए काम किया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने थ्योरी को बाद में एक्सप्लेन किया।
Richard got second position among 1,510 students in graduation from Harvard. It was a wonderful achievement. Then he became a graduate student researcher at Harvard Medical School and began his experiments to test his theory. His theory might prevent some types of cancer and other diseases. This all was possible due to upright scientific curiosity. रिचार्ड ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन में 1510 स्टूडेंट्स में सेकंड पोजीशन जो है वो हासिल की। ये एक वंडरफुल अचीवमेंट थी, शानदार उपलब्धि थी। तब वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है शुरू कर दिया टू टेस्ट हिज थ्योरी। उसकी थ्योरी जो है कुछ तरह के कैंसर और दूसरी बीमारियों से बचा सकती थी। यह सब एब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हो पाया। Albright was not only interested in collecting butterflies, but he was a champion debater, public speaker, a good canoeist, and all-around outdoors person. He was an expert photographer also. एब्राइट सिर्फ बटरफ्लाइज कलेक्ट करने में ही इंटरेस्ट नहीं रखता था, बल्कि वो एक चैम्पियन डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था, एक अच्छा कैनोइस्ट था और काफ़ी सारी प्रतिभाओं वाला व्यक्ति था। वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था। मिस्टर वेहरर, his social study teacher, admired him. He said that Richard was competitive but not in bad sense. He worked hard not for winning's sake but to do the best he could. Undoubtedly, Richard had all the qualities of a great scientist. He wanted to be the best for right reasons. He became scientist and never lost his curiosity. उसके जो सोशल स्टडी के टीचर थे मिस्टर वेहरर, उन्होंने भी उसकी तारीफ़ की। उसने कहा कि रिचार्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन बुरी फीलिंग वाला नहीं, बुरे सेंस में नहीं। उसने जीतने के लिए परिश्रम नहीं किया, बल्कि वो जितना बेहतर कर सकता है, जितना श्रेष्ठ कर सकता है, वो करना चाहता था। अनडाउटेडली यानी कि निस्संदेह रिचार्ड में एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने की सारी खूबियाँ थी, सारी विशेषताएं थी। वह सही कारणों से बहुत अच्छा करना चाहता था और वह एक साइंटिस्ट बना और कभी भी अपनी जिज्ञासा को, कभी भी अपनी क्यूरियोसिटी को उसने कम होने नहीं दिया।